So hello everyone, I am Prachita Bhattacharya and today is the second day for the getting started with backend development. So previous day we learned about PHP. The cheat sheet regarding PHP will actually be the queries, will actually be the code that Manisha had written earlier in the session. That will be shared like within the upcoming 2 days. And also I will be sharing the MySQL commands that I have written here. I will be sharing the GitHub repository regarding it, where the commands will be written. So no worries, those will be shared with you like within the upcoming Monday. Those resources will be shared. So today we will be learning about MySQL, but before learning about MySQL, you will be like you may have the question like why you have to learn MySQL. So MySQL is actually a database management system. So database and database management system are very different. Database is actually a collection of records or collection of data. Like we have often come across, like हम लोग ही बोलते हैं बैठ के कि एक डेटाबेस ऐसा होता है, वैसा डेटाबेस होता है, हाँ ये स्टूडेंट का डेटाबेस है, ये एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस है. मतलब डेटाबेस में we know that what is a database comprises of. It comprises of information, related information. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक is a program or a software that helps to manage a database. Like database can be small or big, but when there is a huge database concerned, then the developer or the person using the database, it becomes very difficult for him to like go to the records, deep dive into the records and access them like individually. So so डेवलपर या कंसर्न यूजर को हेल्प करने के लिए आता है DBMS. तो MySQL is a database management language, and what MySQL does is that it helps us to query the particular database. Like we have learned PHP earlier, so PHP और MySQL दोनों मिला के एक फंक्शनल बैकएंड बनाता है वेबसाइट पे. मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम सपोज एक वेबसाइट बनाए हो जिसका फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है. तो फ्रंट एंड में यूजर कुछ क्वेरी भेज रहा है उसका डेटाबेस में, मतलब वेबसाइट का डेटाबेस में, तो तुम ऑलवेज ना बैक एंड में रहोगे कि ऐसे पूरा क्वेरीज देने के लिए कि हाँ ये क्वेरी ज़रूरत है, वो क्वेरी ज़रूरत है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे तो तुम ऑब्वियस और मतलब ऑलवेज नहीं रहोगे. तो ये काम तुम्हारा एसक्यूएल कर देगा, एसक्यूएल लैंग्वेज कर देगा. तो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है. इसका सोल पर्पस रहता है क्वेरीज, मतलब ऐसे डेटा रिट्राइव करना डेटाबेस से. तो डेटाबेस तो एसक्यूएल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ऑब्वियसली. तो एक होता है MySQL होता है, PostgreSQL होता है, देन Oracle होता है. तो हम लोग आज MySQL ही देखेंगे. और इससे पहले बोलना सही रहेगा कि DBMS भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है रिलेशनल DBMS और एक होता है नॉन रिलेशनल DBMS. तो नॉन रिलेशनल DBMS होता है कि ऐसे कीज और मतलब की वैल्यू पेयर होता है. मतलब जैसे तुम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे पाइथन में डिक्शनरी हो गया या C++ जावा में मैप हो गया, मतलब वो हैशिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज करते हैं, काइंड ऑफ वो हैशिंग स्ट्रक्चर से ये लोग डेटा स्टोर करता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस में. तो नॉन रिलेशनल हो गया, फायरबेस हो गया, तो ये सब MongoDB हो गया, ये सब नॉन रिलेशनल DBMS सिस्टम है. और दूसरा है कि रिलेशनल DBMS. तो रिलेशनल DBMS होता है कि ये सब जो मतलब जो वैल्यू स्टोर करता है, इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन. ये होता है रिलेशनल DBMS का. तो MySQL is a kind of relational DBMS language. तो MySQL स्टार्ट करने से पहले दिखा देते हैं कि कैसे सेटअप किया जाता है. I'll be sharing my screen. Is my screen visible? Yes. Okay, thank you. तो लेट्स प्रोसीड. अच्छा, तो तुम ऐसे MySQL अगर गूगल में सर्च करते हो तो पहला वेबसाइट यही आता है, MySQL का ऑफिशियल वेबसाइट आता है.
तो MySQL में हम लोगों को जाके बहुत सारा तुमको देखने मिलेगा, बट हम लोगों को जो चाहिए मेनली वो चाहिए MySQL community server. So what MySQL community server does is that whatever like query we will be writing and whatever like how we will be interacting with the database, that will be handled actually by the MySQL community server. तो इसका बहुत सारा वर्जन होता है, तो हम बोलेंगे कि तुम वो रिसेंट वाला वर्जन ही इंस्टॉल करो, या पुराने वर्जन मेरा शायद 5.7 ऐसा कुछ है, तो या माइन इज 5.7, तो 5.7 भी ऐसे इंस्टॉल कर ही सकते हो. तो इसमें बहुत सारा zip आर्काइव भी दे रहा है, बट हाँ हम MSI इंस्टॉल करते हैं. तो you can like go to this page. So what I did is like I went to the community server page and then I clicked here, जो MSI वर्जन होता है. तो MSI वर्जन इंस्टॉल करोगे तो आसानी होगा थोड़ा, शायद मुझे तो आसानी होता है. तो MSI वाला में फर्स्ट वाला इंस्टॉल करोगे, ऐसे डाउनलोड बटन क्लिक किए, डाउनलोड बटन क्लिक करने लॉगिन और साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा, बट हम ऐसे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड यही पे क्लिक करते हैं. तो इंस्टॉल हो गया तुम्हारा, ठीक है. तो ये इंस्टॉल होने के बाद मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम तुमको शॉर्ट में इंस्ट्रक्शंस बता देंगे. जैसे कोई exe फाइल तुम इंस्टॉल करते हो, just like when you click an exe file and it gets like you press next, you accept the terms and conditions and like install the software on your local computer, वैसे ही सेम MySQL community server का है. बट तुमको दो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा. तुमको MySQL का कुछ पैकेजेस आता है, तो तुम उसमें अपना एक आता है डेवलपर पैकेज, वहाँ पे सब ऑप्शंस रहेगा, लाइक इट विल बी इन फॉर्म ऑफ सिलेक्ट लिस्ट. तो वहाँ पे तुम अपना डेवलपर पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर तुमको उतना ज़्यादा पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करना है, देन यू कैन जस्ट गो टू कस्टम पैकेजेस और उसमें MySQL सर्वर और तो वो शेल वाले इंस्टॉल कर सकते हो. बट अगर तुमको समझ में नहीं आए कि कहाँ क्या इंस्टॉल करना चाहिए, देन यू कैन जस्ट इंस्टॉल द डेवलपर वर्जन. तो देन नेक्स्ट करते जाओगे, देन तुमको एक जगह आएगा कि यू हैव टू प्रेस द यूजर नेम एंड ऑल्सो द पासवर्ड. तो होता है कि लाइक व्हेन वी आर एक्सेसिंग अ पर्टिकुलर डेटाबेस, तो तुमको डेटाबेस का सिक्योरिटी भी देखना पड़ता है, नहीं तो डेटाबेस कोई भी देख जाएगा. तो तुम्हारा सपोज एक बहुत तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, you obviously don't want that to be viewed by everyone, तो तुमको इसके लिए सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा. तो यही क्या करता है कि MySQL का एक यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड होता है. तो वो पासवर्ड तुमको ऑलवेज डालना पड़ेगा टू लाइक एक्सेस द MySQL सर्वर. तो पासवर्ड ऐसे सिंपल डाल देना, कोई मतलब इशू नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही क्रिएट करना है. ऐसे कोई सिंपल पासवर्ड भी डाल सकते हो, और एक यूजर ऐसे लोकल ऐसे कोई भी यूजर नेम डाल सकते हो. मेरा यूजर नेम रूट था, यूजुअली रूट ही यूजर नेम बहुत सारा MySQL सर्वर्स का होता है. तो देन ऐसे नेक्स्ट करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा. तो इंस्टॉल होने के बाद तुम देखोगे कि तुम अगर MySQL यहाँ पे सर्च करते हो, then you can see like MySQL 5.7 command line client is coming. So when you are opening it, so this comes. So this was what I was talking of. It is asking of password. So after when I give my password, then my MySQL server starts. So what is the proof that my MySQL server is starting is that like all this information is coming, that welcome to the MySQL monitor and everything. So you can like start querying and also start like putting your commands in this here also. तुम ऐसे यहाँ पे भी डाल सकते हो, बट हम और कुछ एक इंटरफेस यूज करते हैं, वो भी हम बताएंगे. बट हाँ, इस पे भी डाल सकते हो. तो इस पे हम काम करेंगे, इस पे थोड़ा देर बाद में आते हैं. तो ऐसे इंस्टॉल किया जाता है. तो तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आया वो इंस्टॉलेशन, हम जैसे बताए हैं, थोड़ा मतलब याद रखना कि वो सब मतलब की पॉइंट जो बताए हैं इंस्टॉल करने के टाइम पे, वो याद रखना. वो इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट नहीं होगा. तो अभी के लिए तुम लोग ये वाला एक वेब कंपाइलर है SQL का, इसमें तुम यूटिलाइज कर सकते हो. तो इसमें क्या करना है कि हम जो भी क्वेरी तुमको बोलेंगे उसमें तुम यहाँ पे लिख सकते हो, एंड यू हैव टू जस्ट प्रेस रन. ठीक है, रन करोगे तो यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा. जहाँ पे कोई क्वेरी है, ये बताएंगे हम क्या क्वेरी लिखा हुआ है. इसमें रन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, ये ऑटोमेटिकली आउटपुट निकल जाएगा. तो आई एम शेयरिंग दिस हियर, आई एम शेयरिंग दिस इन द चैट विंडो, क्योंकि थोड़ा टाइम शायद लग सकता है वो MySQL सर्वर तुमको इंस्टॉल होने में. बट यू कैन डू दिस फॉर द टाइम बिंग, like you can implement this for the time being. I've shared that link in the command in the chat window.
तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो बोल रहे थे इंटरफेस यूज करेंगे, तो आई विल बी यूजिंग पॉपसिक्वल फॉर द इंटरफेस वन। तो पॉपसिक्वल क्या होता है, कोलैबोरेटिव एसक्यूएल एडिटर होता है। मतलब जैसे हम लोग VS कोड यूज करते हैं, तो पॉपसिक्वल इज लाइक काइंड ऑफ VS कोड, बट फॉर इट इज फॉर एसक्यूएल ओनली। तो एसक्यूएल तो तुम बोल सकते हो, नाउ यू कैन आस्क दैट हम लोग तो MySQL कमांड क्लाइंट यूज कर रहे हैं, देन हाउ कैन वी कनेक्ट दैट। तो तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब पॉपसिक्वल को तुमको अपना MySQL सर्वर से इंस्टॉल कनेक्ट करना पड़ेगा। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम दिखा देते हैं। तुम और भी कोई ऐसे एडिटर यूज कर, तुम और भी ऐसे एसक्यूएल का बहुत सारे एडिटर्स ऐसे है मार्केट में, तुम वो भी यूज कर सकते हो। हम पॉपसिक्वल यूज किए क्योंकि हम GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक लिए थे। तो GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक में पॉपसिक्वल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देता है, व्हाइल यू आर अ स्टूडेंट फ्री देता है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए हम यूज किए थे। और भी बहुत सारे हैं एसक्यूएल का एडिटर्स जो तुम यूज कर सकते हो। तो पॉपसिक्वल, तो जब तुम पॉपसिक्वल खोलो, तो पॉपसिक्वल भी ऐसे जैसे हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करना है। ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक आएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देन आफ्टर व्हेन यू स्टार्ट पॉपसिक्वल, तो तुम लोगों के पास ऐसा एक विंडो आएगा। ऐसा विंडो नहीं आएगा क्योंकि लाइक आई हैव ऑलरेडी यूज पॉपसिक्वल, तो ऐसा हो सकता है कि तुम लोग को अभी दिख रहा है, बट तुम लोगों के पास ऐसा विंडो आएगा शायद, लाइक हम दिखा रहे हैं। ऐसे विंडो आ सकता है, लाइक वेयर यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा कनेक्शन टाइप। ठीक है, तो सिंस वी आर यूजिंग MySQL हियर, बहुत सारा कनेक्शन टाइप्स यहाँ पे मिलता है पॉपसिक्वल पे, तो आई विल सिलेक्ट MySQL हियर। तो ऐसे तुमको एक विंडो दिखेगा, लाइक व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग योर व्हेन यू विल स्टार्ट फर्स्ट यूजिंग द पॉपसिक्वल, ऐसा विंडो तुमको एक दिखेगा। सेम टू सेम इंटरफेस शायद नहीं दिख सकता है, बट हाँ ऑल दिस फील्ड विल बी देयर। तो फील्ड कुछ ऐसा नहीं है, तो ये इस फॉर्म से ही तुम अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो MySQL सर्वर से। ठीक है, तो MySQL, तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, कनेक्शन नेम तुम कुछ भी डाल सकते हो। होस्ट नेम पोर्ट होता है, होस्ट नेम होता है तुम्हारा लोकल होस्ट होता है। जैसे कोई अगर लाइव, जैसे हम लोग वो वेब डेवलपमेंट का सेशन में किए थे कि वी वर स्टार्टिंग द पेज ऑन अ लोकल होस्ट सर्वर, तो लोकल होस्ट क्या करते हो, यहाँ पर भी लोकल होस्ट है, बट तुमको देखना पड़ेगा कि ये जो 3306 है यहाँ पे और कुछ असाइन नहीं होना चाहिए। देन मतलब क्लैश होगा और ये कनेक्शन सेट नहीं होगा। तो ये पोर्ट खाली रहना चाहिए, ओनली फॉर द MySQL, ओनली फॉर MySQL पर्पसेस। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस तुम्हारे पास अभी भी नहीं है, मतलब मेरा पास, तो हम लोग अभी तक डेटाबेस से ही नहीं किए, तो ये भी आएंगे। यूजर नेम और पासवर्ड में तुमको यूजर नेम डालना पड़ेगा। तो यूजर नेम मेरा है रूट और पासवर्ड डाल लेते हैं। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि दिखा है कि लोकल होस्ट इज नॉट सपोर्टेड फॉर अ क्लाउड कनेक्शन, बट नाउ वी डोंट नीड अ क्लाउड कनेक्शन, सो आई विल बी जस्ट सिलेक्टिंग इट दैट इट इज कनेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम माई कंप्यूटर। तो इससे प्रॉब्लम चला जाएगा। ये और कुछ सेटअप नहीं करना है, तो इसके लिए डेटाबेस चाहिए, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है क्या कि मतलब सपोज एक कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का बहुत सारा डिफरेंट एम्प्लॉयज है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई इंटर्न है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, ऐसा होता है। तो उन लोगों का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स रहता है। तो कंपनी का एक डेटाबेस होता है जहाँ पे देयर विल बी सेवरल टेबल्स लाइक एम्प्लॉयज टेबल, फाइनेंस टेबल, देन कंपनी लोकेशन, देन जॉब हिस्ट्री टेबल। तो ऐसे बहुत सारे टेबल्स होता है। सो अ डेटाबेस कैन कंटेन मोर देन वन टेबल एंड a table can contain more than one column and the values are put in those columns. तो एक जो रो होता है उस रो में वैल्यू घुसता है, और कॉलम्स एट्रीब्यूट्स यहाँ पे होता है। हम लोग यहाँ पे कॉलम्स नहीं यूज करते हैं वो कीवर्ड, हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो सपोज एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का टेबल है, तो एम्प्लॉय का टेबल में एक एम्प्लॉय कॉलम क्या रहेगा, पहले एक एम्प्लॉय आईडी रहेगा, जैसे हम लोग का एक स्टूडेंट आईडी रहता है, तो एम्प्लॉय आईडी रहेगा, एम्प्लॉय का नेम रहेगा, और सपोज एम्प्लॉय का ईमेल है। तो ये जो तीन फील्ड्स है, हम बोले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय ईमेल, ये तीन कॉलम्स है, और इसमें जो वैल्यूज घुसेगा दे विल बी इन रोज। तो यही होता है पर्टिकुलर डेटाबेस का स्ट्रक्चर, और क्लियरली हम तुमको बताएंगे। इसलिए लाइक आई ऑप्टेड फॉर पॉपएसक्यूएल बिकॉज पॉपएसक्यूएल में क्लियरली टेबल दिखाता है पूरा बैठ के। तो
the first command is, we will be seeing that how many databases are there in my system. So for that I will be using show databases. तो यहाँ पे दिखा दिया कि कितना सारा डेटाबेस है मेरा पे. इंफॉर्मेशन स्कीमा डिफॉल्ट डेटाबेस रहता है. कोडिंग बुक हम बनाए थे, मूवीज हम बनाए थे, माइस्क्यूएल भी हम बनाए, माइस्क्यूएल हम नहीं बनाए थे, माइस्क्यूएल एक डिफॉल्ट रहता है. तो यहाँ पे सब डेटाबेस दे दिया जो अभी तक मेरे सिस्टम में है. तो अगर मुझे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, मुझे और कोई डेटाबेस ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे कि करेंगे क्रिएट, I want to create a new database, create database company. तो you might have a question कि ऐसे आप मतलब कुछ कैप्स में लिखे, कुछ नॉर्मल लिखे. आई लाइक तुम लोग पूरा ऐसे कैप्स में भी लिख सकते हो, पूरा स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, बट हम ये सिंटैक्स थोड़ा फॉलो करते हैं क्योंकि ये प्रेफरेबल सिंटैक्स है, मतलब कन्वेंशनल सिंटैक्स है कि use the keywords in caps and use the table name or any other column name like in normal. ऐसे ही होता है, like ऐसे मतलब कन्वेंशनल है. तो हम डेटाबेस क्रिएट किए, क्रिएट डेटाबेस. तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिखा है ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया. अगर मेरा कुछ गलती रहता, सपोज हम लिखे तो डेटाबेस में हम लिखे कि डेटाबेस में हम ई डालने भूल गए और ऐसे लिख दिए कंपनी इन्फो, कुछ और डेटाबेस ऐसे कंपनी इन्फो ऐसा कोई डेटाबेस बनाने गए और मेरा डेटाबेस में ई मिसिंग है जो नहीं होना चाहिए. तो ये क्या करेगा, एरर दिखा देगा, बोलेगा यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, ऐसे दिखा देगा. इसका मतलब है तुम्हारा एरर, कुछ एरर रह सकता है. तो एरर बहुत टाइप का हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कोई टेबल का तुम नाम भूल लिखे हो तो वो टेबल का नाम ही बदल गया है. ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा क्वेरी, तुम्हारा सिंटैक्स में डिफिकल्ट, सिंटैक्स में प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है. तो लेट्स मूव अहेड. क्रिएट डेटाबेस कंपनी. तो क्रिएट डेटाबेस कंपनी करके हम लोग डेटाबेस बनाए और शो डेटाबेसेस के हम लोग देख रहे हैं कि अपना सिस्टम में कौन सा डेटाबेस है. हर टाइम को तुमको डेटाबेस नहीं क्रिएट करना पड़ेगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम देख लिए कि हाँ ये मेरे डेटाबेस है, अच्छा हाँ ये डेटाबेस से मुझे काम करना है. तो ऐसे भी करने के लिए तुम शो डेटाबेसेस कर सकते हो. तो तुमको शायद डेटाबेस, अब तुम बोलोगे कि ये डेटाबेस को हम एक्सेस कैसे करेंगे. तुम क्रिएट करने से एक्सेस नहीं कर पाओगे, तुमको एक्सेस करना पड़ेगा डेटाबेस. तो डेटा एक्सेस करने के लिए सपोज हम कोडिंग बुक वाले डेटाबेस एक्सेस करेंगे, तो हम करेंगे यूज लिखे, यूज देन स्पेस देन डेटाबेस का नेम. तो डेटाबेस का नेम है कोडिंग बुक. सॉरी, देखो डेटाबेस चेंज्ड, मतलब मेरा कुछ डिफॉल्ट डेटाबेस, मतलब मेरा कुछ यहाँ पे शायद डेटाबेस एक्सेस था तो मेरा डेटाबेस चेंज हो गया. तो अभी ये कोडिंग बुक मेरा में एक्सेस हो रहा है. तो अभी अगर हम शो टेबल्स करते हैं तो ये कोडिंग बुक में जो टेबल्स है वही मुझे दिखाएगा सिर्फ. जैसे कोडिंग बुक में मतलब ये इतना सारा मेरा टेबल्स है. तो ये हुआ. तो ऐसे तो तुमको अगर पॉपसिक्यूएल या कोई भी एसक्यूएल एडिटर में करना है, तुमको पहले यहाँ पे डेटाबेस बनाना पड़ेगा. तो हम लोग आज का सेशन के लिए जो डेटाबेस बनाए हैं वो है कंपनी. तो ये कंपनी डेटाबेस को हम लोग ये पॉपएसक्यूएल से कनेक्ट करेंगे, पॉपएसक्यूएल से कनेक्ट करके हम लोग उस पर एक्सेस करेंगे और एंड वी विल मेक क्वेरीज एंड ऑल्सो वी विल क्रिएट टेबल्स. अभी कोई टेबल नहीं है इसमें. तो बोलो इतना तक समझ में आया क्या? कोई क्वेश्चन है तो बताओ. हेलो, अभी तक प्रॉब्लम नहीं है. हाँ ठीक है, ठीक है. देन यहाँ पे तो हम बोल दिए कि ये कनेक्शन नेम कुछ भी डाल सकते हो, ये भी हम बोले हैं. तो अभी डेटाबेस का नाम डालना है. तो डेटाबेस का नाम हम लोग का क्या है, कंपनी. हम लोग डेटाबेस कंपनी बनाए हैं. तो डेटाबेस तुम्हारा हुआ कंपनी, हो गया. तो अब तुम देखना चाहोगे शायद कि तुम्हारा डेटाबेस मतलब तुम सही से इंफॉर्मेशन दिए हो कि नहीं कनेक्ट करने से पहले.
इसलिए तुम टेस्ट कर सकते हो, ये एक फीचर देता है पॉप एसक्यूएल। तो टेस्ट कर लिए, हाँ लुक्स गुड, मतलब मेरा कनेक्शन सही हो सकता है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंफॉर्मेशन में। तो कनेक्ट किए, तो कनेक्ट कर गया मेरा डेटाबेस। तो अभी मेरा डेटाबेस है कंपनी। ये और कुछ डेटाबेसेस के लिए है, पर अभी मेरा डेटाबेस है कंपनी। तो हो गया कनेक्शन। तो इसमें देखो कुछ टेबल फेबल नहीं है, कुछ व्यूज नहीं है। तो इसमें तुमको वो यूज डेटाबेस लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी तुम इसमें एक्सेस कर चुके हो, मतलब एक्सेस कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको कंपनी डेटाबेस में एक्सेस करने के लिए। तुम अपना कनेक्शन, तुम अपना पिछला कनेक्शन, तुम इन्यूमरेबल कनेक्शंस बना सकते हो। तुम अपना पिछला कनेक्शन इसमें जाके देख सकते हो कि मैनेज कनेक्शंस। तो मैनेज कनेक्शंस में जो कनेक्शन तुम्हारा रहेगा उसमें कनेक्टेड दिखाएगा। सपोज मेरा ये हम अभी बनाए हैं कंपनी, तो कंपनी डेटाबेस में मेरा कनेक्शन अभी दिखा रहा है। तो हो गया मेरा कंपनी कनेक्शन डेटाबेस में। तो चलो अभी टेबल्स में, तो अभी देखते हैं कि कितना टेबल्स है इस डेटाबेस में। तो इसमें तुम ये रन बटन भी क्लिक कर सकते हो। अच्छा सर्वर कनेक्टेड नहीं है, रुको, यस आई थिंक हाँ सर्वर कनेक्टेड हो गया। तो सर्वर कनेक्टेड हो गया, तो हम देखेंगे कितना टेबल्स है। तो तुम ऐसे क्वेरी लिख के ऐसा कर सकते हो, क्वेरी लिख के रन कमांड, रन रिटर्न कर सकते हो, रन ऐसे क्लिक कर सकते हो, इसमें दिखा देगा। या हम करते हैं क्या, कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करते हैं। तो कंट्रोल प्लस एंटर भी रन का तरह ही काम करता है। तो हम लोग देखें कि क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस नाम देना पड़ता है। यूज देन डेटाबेस नेम, मतलब वो डेटाबेस को तुम एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे तुमको यूज डेटाबेस यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड तुम करके ही तुम डेटाबेस, मतलब डेटाबेस ये इसमें क्वेरी विंडो में घुसते हो। तो इसलिए तुमको यूज डेटाबेस यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। और अभी तुम देखोगे कि टेबल शो कैसे करते हैं, मतलब कितना हम देखना चाहेंगे कि कितना टेबल्स है मेरे पास। तो रन करते हैं, अभी मेरे पास कोई टेबल्स ही नहीं है, तो इसलिए नो रिजल्ट्स दिखाया। तो अब टेबल बनाना है, तो कैसे बनाए, बहुत इजी है। क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम दोगे। टेबल का नाम सपोज एम्प्लॉय दिए, देन क्रिएट टेबल एम्प्लॉय हो गया। देन एक ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। अब ब्रैकेट तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही लाइन में, बट हाँ हम थोड़ा मतलब कन्वेंट, थोड़ा मतलब प्रेफर्ड वे में लिखते हैं, प्रेफर्ड वे या जो भी, मतलब ऐसे हम ऐसे लिखना पसंद करते हैं। इससे मतलब मुझे भी अच्छे से पता चलता है जब हम बाद में देखते हैं। तो तुम बोलो कि एक एम्प्लॉय में, सपोज एक एम्प्लॉय टेबल में तुम क्या क्या कॉलम तुम लोग रख सकते हो, बोलो। कोई बोलो कि कितना, तो मतलब गेस करो कि कोई क्या कॉलम हो सकता है। एक है नेम, हाँ तो एम्प्लॉय नेम रख सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी, हाँ तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी। पोजीशन, मतलब कंपनी में कौन सी पोजीशन में है, हाँ और और एम्प्लॉय एक आईडी। ईमेल, हाँ आईडी तो ईमेल, रहेगा। एड्रेस। हाँ रह सकता है। अभी के लिए 4 ही कॉलम्स लेके चलते हैं। तो देखो ये तुम्हारा कॉलम क्रिएट हो गया, बट तुम एसक्यूएल को बताओगे कैसे कि इसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, वैल्यू का डेटा टाइप क्या होगा। तो डेटा टाइप हम लोग पढ़े ही है कि डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डेटा टाइप्स यूज होता है, जो स्पेसिफाई करता है कि एक कॉलम में कौन सा टाइप का डेटा टाइप का वैल्यूज जाएगा। तो एम्प्लॉय आईडी को पहले रखते हैं, क्योंकि मतलब ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है कि एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हम बताते हैं इसका सिग्निफिकेंस भी हम बताएंगे कि एम्प्लॉय आईडी क्यों सामने रहेगा। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड जा सकती है। हाँ कर सकते हैं, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट। अच्छा एम्प्लॉय एड्रेस भी ऐड करते हैं, एम्प्लॉय एड्रेस। तो हो गया तुम्हारा इतना सारा कॉलम्स हो गया, बट तुमको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। तो अभी आता है कि कॉलम जब तुम स्पेसिफाई करोगे
तब तुम करोगे क्या, पहले कॉलम का नेम लिखोगे, देन तुम स्पेसिफाई करोगे कि कौन सा डेटा टाइप का वो वैल्यू उसमें कंटेन करेगा। तो डेटा टाइप क्या, तो एम्प्लॉय आईडी क्या होता है, मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन एक। तो तुम लोग गेस करो कि मतलब एम्प्लॉय आईडी क्या हो सकता है, कौन सा डेटा टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग या नंबर या कैरेक्टर सिर्फ। वॉरकर स्ट्रिंग, वॉरकर क्योंकि कैरेक्टर। हाँ एक बोला कोई, हाँ देखो मतलब तुम लोग, किसी लोग बोले कि नंबर हो सकता है ना, किसी लोग बोला कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रिंग कोई यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे है varchar। तो varchar क्या होता है, varchar में तुम नंबर्स भी दे सकते हो, तुम ऐसे नंबर्स भी दे सकते हो, सिंबल्स भी दे सकते हो, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स जो होता है, और तुम यहाँ पे मतलब ऐसे लिटरल्स भी दे सकते हो, मतलब कैरेक्टर लिटरल्स जो होते हैं वो भी दे सकते हो। तो एम्प्लॉय आईडी में हम varchar स्पेसिफाई किए। तो varchar स्पेसिफाई करोगे तो तुमको एक साइज भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो साइज, तो सपोज varchar एम्प्लॉय आईडी हम रखना चाहते हैं कि 10 सिर्फ 10 उसका लेंथ होगा 10, जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा उसका साइज होगा 10। तो हम स्पेसिफाई कर दिए varchar ब्रैकेट 10 कर दिए। अभी इसका बाद कंस्ट्रेंट्स आता है, इसका और पीछे मतलब यहाँ पे तुम कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हो, ये इसके बारे में हम बाद में बताते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय आईडी varchar 10 लिखे, एम्प्लॉय नेम ऑब्वियसली कैरेक्टर ही होगा क्योंकि यहाँ पे तो नंबर्स नहीं आएंगे ना, तो कैरेक्टर। तो यहाँ पे तुमको आईडी तुमको साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कैरेक्टर 20 होगा। दी, हाँ हाँ, यहाँ कैरेक्टर के लिए मतलब जो कोड में यूज करते हैं वहाँ कैरेक्टर के लिए मतलब जस्ट एक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं फॉर नेम। नहीं, और स्ट्रिंग जब यूज कर, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, मतलब तुम यहाँ पे साइज स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो 20 तुम्हारा जब होता है तब तुम एक स्ट्रिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो। 20 जब तुम देते हो, अगर 1 दोगे इसका मतलब एक ही कैरेक्टर से यूज कर सकोगे। यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। तो कैरेक्टर तुम 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, मैक्सिमम इसका 255 हाँ 255 या 225 ऐसा कुछ वैल्यू है, तो मैक्सिमम उतना तक की वैल्यू हो सकता है इसका। तो यहाँ पे तुम स्ट्रिंग भी स्पेसिफाई करना चाहते हो तो तुमको कैरेक्टर देन बाद में उसका साइज देना पड़ेगा, उससे ही पता चलता है कि ये स्ट्रिंग है। समझ में आया? हाँ 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 ठीक है। हाँ, तो एम्प्लॉय पोजीशन भी कैरेक्टर ही होगा। varchar भी डाल सकते हो क्योंकि बहुत टाइम्स में होता है ना हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो varchar डाल देते हैं, varchar देन साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब एम्प्लॉय ईमेल भी varchar ही होता है क्योंकि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। तो तुम्हारा कॉलम नेम, देन तुम्हारा कॉलम टाइप, देन ब्रैकेट, देन तुमको ब्रैकेट में उसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना साइज का होगा तुम्हारा डेटा, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है। तुम इससे कम रख सकते हो डेटा का साइज, मतलब जब तुम डेटा इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स ऐसे एंटर करोगे तो अब ऐसे तुम उसका 20 नहीं रख के, तुम्हारा हो सकता है तुम्हारे ईमेल का लेंथ हो सकता है 5 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है, बट वो मैक्सिमम 20 होगा, 20 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट क्या होता है, इंटीजर होता है। varchar भी रख सकते हो। varchar क्यों रखना है, हम बोलते हैं क्योंकि हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसा +91 लिखते हैं, तो अगर +91 तुमको लिखना है देन varchar रख सकते हो, हम यहाँ पे int ही रखते हैं। अच्छा जी, like there is a max limit for the variables. Can we set a min limit? Like the email could be maximum 20 and minimum 5 digits or something like that. ऐसे तुम कर सकते हो, इसका थोड़ा और हायर सिंटैक्स होता है, ये भी हम तुमको बताएंगे कि कैसे तुम इसको सेट कर सकते हो। ये कंस्ट्रेंट्स का पार्ट में आता है। यहाँ पे तुम मैक्सिमम कर दिए, बट तुमको कंस्ट्रेंट में तुम इसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसका लेंथ ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ऐसे तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके जी। हाँ, तो एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इंट हुआ, इंटीजर यूज कर। अब इंट या नंबर जो भी यूज करोगे, इसके साथ तुम कैरेक्टर साइज नहीं भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट तुमको ये कार या varchar में तुमको वो कैरेक्टर साइज तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय एड्रेस varchar ही होता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ ये नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, देन अल्फाबेट्स रहता है, तो varchar हम 20 रखते हैं इसका साइज।
100 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 255 या 225, आई थिंक 255 ही है, मतलब उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका लेंथ भी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेमीकोलन ऐड करना है, तो सेमीकोलन ऐड करोगे तो सेमीकोलन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट या जो भी C++ में कोड लिखते हैं या जावा में कोड लिखते हैं तो सेमीकोलन ऐड करते हैं, यहाँ पर भी सेमीकोलन ऐड करना है। तो ये लिख दिए, तो इसको अभी रन करते हैं, तो देखना रन करने में क्या आएगा। तो हुआ गया मेरा टेबल बिल्ड हो गया। अब ये दिखाएगा रोज अफेक्टेड 0, क्योंकि मेरा कोई रो में तो वैल्यू रहेगा ना, हम तो वैल्यू अभी तक घुसाए नहीं है, तो इसलिए रो दिखाएगा। तो ऐसे हो सकता है कि अब ये जो क्वेश्चन पूछा कि मतलब मोर देन 5 रखना है, ये लिमिट कैसे रख सकते हैं? ये लिमिट भी रख सकते हो, बहुत आसानी से रख सकते हो। जैसे सपोज हम ये टेबल कॉपी करते हैं और फिर से बनाते हैं। अब दो टेबल सेम नाम के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटाबेस में, तो इसका नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और एक ही टेबल में दो सेम नंबर ऑफ सेम नाम से कॉलम नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। तुम दो अलग अलग टेबल में सेम नाम का कॉलम रख सकते हो, बट तुम एक ही टेबल में दो कॉलम सेम नाम से नहीं रख सकते। देन तो मतलब डेटा एंटर करने के टाइम पे, इंसर्शन के टाइम पे तुमको तो समझ में, मतलब एसक्यूएल को तो समझ में नहीं आएगा ना कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो इसलिए ये एम्बिग्यूटी नहीं रखना है। तो ये जो तो अभी तो ये तो हो गया, ठीक है। अभी बारी आता है कंस्ट्रेंट्स का। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स हम लोग का डेटा को चेक करता है कि ये डेटा सही से आ रहा है कि नहीं, ये डेटा डुप्लीकेट तो नहीं है, ये डेटा खाली तो नहीं है, ये देखने के लिए कंस्ट्रेंट्स काम करता है। तो कंस्ट्रेंट्स तुम लोगों को ये डेटा टाइप और साइज के बाद में डालना पड़ता है। तो सपोज एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, तो हर लोगों का एक एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट होता है। मतलब मेरा सपोज जो स्टूडेंट आईडी है वो तुम्हारा स्टूडेंट आईडी नहीं रहेगा, वो हम लोगों का एक यूनिक है, ऑलवेज वो यूनिक ही रहेगा, वो कभी मतलब सेम नहीं रह सकता है। तो इसके लिए तो हम लोग चेक करेंगे कि डेटा एंटर करने के टाइम पे कि ये एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट डाल दिए। यूनिक क्या करता है? सपोज मेरा एक एम्प्लॉय आईडी है 1, ठीक है, तो और कोई सेम एम्प्लॉय आईडी एंटर करने का कोशिश किया, एसक्यूएल उसको रोक देगा, बोलेगा कि नहीं, तुम नहीं कर सकते क्योंकि डुप्लीकेट हो रहा है ये रिकॉर्ड। तो मेरा एम्प्लॉय आईडी से और कोई किसी का एम्प्लॉय आईडी नहीं बनेगा। यही यूनिक का फीचर होता है। दूसरा है सपोज कोई फॉर्म का जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, मतलब सपोज तुम्हारा कोई फॉर्म है, तुमको वो रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए ही चाहिए यूजर से, तो तुमको वो ऑब्वियसली अगर तुमको वो फॉर्म में चाहिए तो फॉर्म से अगर कनेक्टेड कोई MySQL डेटाबेस है उसमें भी तुमको वो रिक्वायर्ड फीचर चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड डेटा फील्ड चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए सपोज तुमको एम्प्लॉय नेम चाहिए ही चाहिए, तो तुम उसको वो खाली नहीं रह सकता है, तो तुम इसके लिए एक नॉट नल कंस्ट्रेंट डाल सकते हो कई भी कॉलम के साथ, जहां पे तुम चाहते हो कि वो डेटा फील्ड कभी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। मतलब डेटा इंसर्शन के टाइम पे कभी एम्प्लॉय नेम खाली नहीं रहेगा, अगर खाली रहता है इसका मतलब एरर जनरेट करेगा। तो ये होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। और एक कंस्ट्रेंट है जो है कि ये जो बोला कि ग्रेटर देन 5 देखना है, ये भी है, ये चेक कंस्ट्रेंट से देख सकते हैं हम लोग। तो चेक कंस्ट्रेंट ऐसा होता है, सपोज यहाँ पे हम चेक किए कि चेक एम्प्लॉय एक्सक्यूज मी, सॉरी मुझे थोड़ा काशी आ गया था इसलिए। सो कंटिन्यू करते हैं। तो एम्प्लॉय तो चेक बता रहे, तो चेक क्या करता है कि डेटा घुसने के टाइम पे तुम चेक में जो कंडीशन देते हो वो तुम्हारा चेक करता है। अगर वो चेक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है देन वो एरर जनरेट करेगा और वो रिकॉर्ड को कभी वो टेबल में, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम में घुसने ही नहीं देगा।
सपोज हम एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट चाहते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 10 हो, मतलब जो भी एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट डाला जाए वो ऑलवेज ग्रेटर देन 10 होगा या ग्रेटर देन 9000 होगा। हम लोग का 9874 ऐसा होता है, मेरा जो है मतलब मेरा जो नंबर स्टार्ट होता है वैसा, तो 10 डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट का कोई नंबर डाल के बोलेंगे कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 10 डिजिट्स होगा, तो ये हम लोग डाल सकते हैं। अभी 10 ही कंसिडर करते हैं, तो चेक एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट जो हम लोग का कॉलम नेम है इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि ये हम लोग का चेक कंस्ट्रेंट था। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करेगा कि एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट को जब भी कोई वैल्यू घुसेगा ये चेक करेगा कि ये ग्रेटर देन 10 है कि नहीं। ये तुम चेक कंस्ट्रेंट से कर सकते हो। तो दूसरा है, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ कंस्ट्रेंट्स हो गया, और लास्ट जो दो कंस्ट्रेंट्स है ये है प्राइमरी की और फॉरेन की। तो प्राइमरी की क्या करता है, यहाँ पे जो हम बोले ना एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी बहुत लोग नल ऐसे रख सकते हैं। मतलब देखो नल अगर कोई कॉलम में मतलब अगर कोई कॉलम यूनिक ऐसे असाइन किए हो तुम उसमें नल वैल्यू घुसा सकते हो। नल मतलब एम्प्टी वैल्यू घुसा सकते हो, वो भी नल के अंदर कंसिडर हो जाएगा। तो तुम चाहते हो कि एम्प्लॉय आईडी तुम्हारा यूनिक भी बने, तुम्हारा नॉट नल भी बने, और एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो एम्प्लॉय आईडी तुम्हारा काइंड ऑफ एक सिंबल बना ना कोई रिकॉर्ड को असाइन करने के लिए। सपोज मेरा एक एम्प्लॉय आईडी, सपोज मेरा जो इंफॉर्मेशन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे अपना एम्प्लॉय आईडी से, तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वो तुम आइडेंटिफाई करोगे तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी से, क्योंकि हम दोनों का एम्प्लॉय आईडी कभी सेम नहीं हो सकता है। तो ये होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इसका कंसेप्ट है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशन और अ टेबल। तो यही होता है प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। तो प्राइमरी की तुम असाइन कर सकते हो। तो प्राइमरी की होता है कि तुमको प्राइमरी की जो तुम कॉलम में असाइन करते हो उसमें यूनिक वैल्यू भी रहना चाहिए और कोई नल वैल्यू भी नहीं रहना चाहिए। ये होता है प्राइमरी की का फीचर। अब प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे तुम अगर प्राइमरी की असाइन करते हो तो ये एम्प्लॉय आईडी तुम्हारा प्राइमरी की बन गया। मतलब तुम एम्प्लॉय आईडी से हर एक रिकॉर्ड को अलग से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। मतलब सपोज 3 रो है, 3 रोज ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो उसमें सपोज एक एम्प्लॉय आईडी 1 है, एक एम्प्लॉय आईडी 2 है। एक एम्प्लॉय तुम सपोज एक रिकॉर्ड चाहते हो जहाँ पे जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो तुम्हारे एम्प्लॉय आईडी 1 से ही तुम उसको आइडेंटिफाई कर दोगे उस रिकॉर्ड को, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1 दोबारा नहीं आएगा उस टेबल पे। तो ये होता है प्राइमरी की का फीचर। और फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की एक होता है कि सपोज तुम्हारा एक टेबल है प्राइमरी जिसमें एक प्राइमरी की है और एक इंडिपेंडेंट टेबल है जहाँ पे तुम वो जो प्राइमरी की है, मतलब सपोज एक टेबल है, सपोज ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी ये तुम्हारा प्राइमरी की है, ठीक है। और ये सेम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय इन्फो में भी है और यहाँ पर भी ये प्राइमरी की है। तो तुम क्या कर सकते हो कि ये एम्प्लॉय आईडी और ये एम्प्लॉय आईडी का मतलब एक रिलेशन बना सकते हो। तो ये रिलेशन बनाता है फॉरेन की। फॉरेन की यही काम करता है। तो यहाँ पे हम फॉरेन की कवर नहीं करेंगे। तो प्राइमरी की बता दिए। तो यही होता है कि ऐसे ही टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग के पास अभी तो हम ये क्वेरी रन कर सकते हैं, लिख के रन करके क्या होता है। हाँ, हो गया, तुम्हारा एम्प्लॉय इन्फो टेबल हो गया। तो हम लोग के पास 2 टेबल बिल्ड हो गया। तो अभी तुमको शायद जानना है कि ये टेबल में क्या क्या फीचर्स है, ये भी तुम जान सकते हो डिस्क्राइब करके। डिस्क्राइब लिखे, देन टेबल का नाम लिखना पड़ता है। एम्प्लॉय टेबल है मेरा, डिस्क्राइब किए, देखो ये पूरा फील्ड का नाम दे दिया, टाइप दे दिया, नल मेरा है कि नहीं, हम नॉट नल नहीं कंसिडर किए थे तो नॉट नल नहीं बना। देन यही सब की अगर ऐड करते तो की हो जाएगा। तो अगर हम एम्प्लॉय इन्फो टेबल इसको डिस्क्राइब करते हैं, देन देखो यहाँ पे हम नॉट नल, यहाँ पे प्राइमरी की है, प्राइमरी की में कभी नल नहीं हो सकता है।
एम्प्लॉय नेम हम नॉट नल डाले थे, तो यहाँ पे नल नो दिखा रहा है। बाकी हम नॉट नल नहीं कंडीशन डाले हैं, यहाँ पे टाइप दिखा दिया, यहाँ पे प्राइमरी की है इसलिए प्राइमरी की दिखा दिया, और डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं किए है इसलिए नल 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 दिखा रहा है। तो यही होता है बेसिक कंस्ट्रेंट जो हम लोग यूज करते हैं एक टेबल में। तो अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ। तो दी प्राइमरी की वाला पार्ट एक बार फिर से बोल सकते हो? वो समझ मतलब प्राइमरी की कहाँ यूज हो रहा है वो वाला। प्राइमरी की होता है कि सपोज मतलब सपोज आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो रहता है या पासपोर्ट का नंबर जो भी रहता है, हर एक पर्सन का वो डिफरेंट रहता है। तुम मतलब मेरा आधार नंबर, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मेरा पैन का पासपोर्ट नंबर कभी तुमसे मैच नहीं करेगा। वो वैसे ही गवर्नमेंट वैसे ही बनाता है उसको। तो वो शायद हो सकता है मेरा कोई गवर्नमेंट, मेरा कोई अगर डेटाबेस बना ऑन द बेसिस ऑफ माय आधार नंबर और एनीथिंग, जहाँ पे ये चीज़ मतलब बहुत जगह हम लोग का आधार नंबर मांगा जाता है, तो दैट आधार नंबर और दैट पासपोर्ट नंबर और दैट ड्राइविंग लाइसेंस नंबर कैन बी अ प्राइमरी की, क्योंकि मेरा वो कभी नल नहीं जाएगा। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो लाइक मेरा कभी आधार कार्ड नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं होगा ना, तो मेरा वो नल नहीं होगा। और हाँ, ऑलवेज यूनिक होगा, क्योंकि मेरा जो होगा, मेरा जो भी नंबर, मेरा जो भी ऑफिशियल नंबर है, तुम्हारा ऑफिशियल नंबर सेम नहीं होगा। तो अगर कोई डेटाबेस बनाया गया उस आधार नंबर या कोई गवर्नमेंट नंबर से कोई डेटाबेस बनाया गया, तो कभी किसी का रिकॉर्ड सेम नहीं होगा, मतलब सबका रिकॉर्ड डिस्टिंग्विशेबल होगा। हाँ, नाम सेम हो सकता है, सपोज मेरा नाम प्रोचिता है तो ऐसा हो सकता है कि किसी और का नाम भी प्रोचिता हो सकता है, बट हम दोनों का आधार नंबर सेम नहीं रहेंगे। मेरा आधार नंबर सेम रहेगा, उसका आधार नंबर सेम डिफरेंट रहेगा, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डिफरेंट रहेगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डिफरेंट रहेगा, मतलब सबका नंबर डिफरेंट रहेगा। सबका ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है या जो भी है, मतलब आईडी नंबर, आईडी कार्ड नंबर जो भी नहीं, मतलब आईडी कार्ड नंबर्स जो भी है वो सब डिफरेंट रहेगा, किसी का भी सेम नहीं रहेगा। तो हम अगर सेम बोले हैं तो गलत बोले हैं, बट सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये डिफरेंट रहने से और यूनिक रहने से और नल वैल्यू नहीं होने से हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ईच रिकॉर्ड को, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्राइमरी की एक रिकॉर्ड का मतलब एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो यही होता है कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की। सपोज एम्प्लॉय आईडी अगर 1 है, एम्प्लॉय आईडी 1 और किसी का नहीं आएगा उस टेबल में। एम्प्लॉय आईडी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट वो दोबारा 2 आएगा, दोबारा 3 आएगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, हो सकता है एम्प्लॉय आईडी 1 का एम्प्लॉय का नाम है जॉन और एम्प्लॉय 2 का भी नाम है जॉन, बट हम लोग फिर भी इस दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि इन लोगों का एम्प्लॉय आईडी डिफरेंट है। तो यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की डिक्लेयर करने से क्या होगा? अगर सेम आ जाए तो एरर दिखाएगा, मतलब ऐसे कुछ, मतलब जो हाँ, डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये तो यूनिक होता है और नॉट नल होता है। तो तुम यूनिक होता है इसका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि डुप्लीकेट आएगा तो तुम दूसरा रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ऐसे मतलब अगर सपोज एम्प्लॉय आईडी 1 है और उसका नाम भी जॉन है, एम्प्लॉय आईडी दोबारा और कोई जॉन करके कोई नाम का कोई एम्प्लॉय है, तो ऐसा जॉन या जो भी, मतलब सपोज एक एम्प्लॉय का नाम है राम और उसका एम्प्लॉय आईडी 1 है, और दूसरा भी एम्प्लॉय का नाम है राम और उसका भी एम्प्लॉय आईडी 1 है, बट दोनों डिफरेंट पर्सन्स है। तो तुम उन दोनों को तुम उन दोनों का रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो वो आइडेंटिफाई करने से तुमको उसको यूनिक बनाना पड़ेगा, और नल रखोगे तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये एक वैल्यू कौन सा है, तो इसलिए तुमको नॉट नल भी रखना पड़ेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी की। ओके, ठीक है, ठीक, समझ गया। तो क्रिएट तो बोल दिए, अभी आता है कि तो क्रिएट इज अ काइंड ऑफ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो एसक्यूएल में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स आते हैं। एक होता है डेटा डेफिनेशन, एक होता है डेटा रिट्राइवल, एक होता है डेटा मैनिपुलेशन, और एक होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल।
तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल थोड़ा एडवांस फीचर्स है, वहाँ पे हम वो कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का हम लोगों का बैकएंड में वो अभी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो डेटा तो क्रिएट हम जो किए, क्रिएट, ये जो क्रिएट कमांड है ये डेटा डेफिनेशन में आता है। डेटा डेफिनेशन, ये डेटा डेफिनेशन में आता है क्योंकि तुम कुछ डिफाइन कर रहे हो, तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आता है। तो डेटा डेफिनेशन में और आता है ऑल्टर आता है, ठीक है। तो ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टर सपोज एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी मेरा वारकार है, ठीक है, तो वारकार ऐसा है, या एम्प्लॉय नेम मेरा कार है, तो ये कैरेक्टर को हम वारकार बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्टर में तीनों होता है। ऑल्टर में होता है ऐड होता है, तुम ऑल्टर कमांड से कॉलम ऐड कर सकते हो। ऑल्टर कमांड से तुम कॉलम को डिलीट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर कॉलम को टेबल से डिलीट कर सकते हो। तुम ऑल्टर कमांड से एक पर्टिकुलर कमांड में, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम में मॉडिफिकेशन भी ला सकते हो। तो ऑल्टर कमांड का सिंटैक्स रहता है ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नाम सपोज हम एम्प्लॉय टेबल को मॉडिफाई करेंगे, तो एम्प्लॉय, देन कॉलम एक ऐड करना चाहते हैं हम, तो ऐड, देन कॉलम का नाम डालना पड़ता है। तो कॉलम का नाम हम सपोज डालेंगे डिपार्टमेंट आईडी, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट का है, ऐड डिपार्टमेंट आईडी, देन सेम नाम दिए, अभी टाइप देना पड़ेगा वारकार, साइज स्पेसिफाई किए, और कोई कंस्ट्रेंट मुझे ऐड नहीं करना है। कंस्ट्रेंट ऐड भी कर सकते हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, बट मुझे अभी कंस्ट्रेंट ऐड नहीं करना है। तो ऑल्टर करते हैं इसको, हो गया, मेरा ऑल्टर हो गया। अगर फिर से एम्प्लॉय टेबल को डिस्क्राइब करते हैं तो तुमको दिखेगा कि एक कॉलम ऐड हुआ है। देखो कॉलम ऐड हो गया, डिपार्टमेंट आईडी। तो इससे तो हम लोग कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो सपोज तुमको कॉलम डिलीट करना है, तो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को डिलीट करते हैं, ऑल्टर टेबल, देन एम्प्लॉय नेम, देन टेबल नेम, देन ऐड नहीं करेंगे, ड्रॉप। तो ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप कॉलम को डिलीट करता है, पूरा डेटा के साथ पूरा डिलीट कर देता है कॉलम को। तो ड्रॉप कॉलम, देन कॉलम का नेम, डिपार्टमेंट आईडी। अब तुमको ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का है, कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉलम का नाम जानते हैं, क्योंकि तुम डिलीट कर रहे हो उसको। तो रन करते हैं कमांड को, हो गया, मेरा डिलीट हो गया। अगर हम ये डिस्क्राइब एम्प्लॉय फिर से रन करते हैं तो देखोगे कि यहाँ पे फिर से ये डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम नहीं है, क्योंकि हम इसको डिलीट कर दिए, ये डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम को पूरा डेटा के साथ ही डिलीट कर दिए। अभी हम डेटा नहीं इंसर्ट किए हैं, बट हाँ डेटा अगर रहता भी हम डेटा के साथ ही पूरा उसको, उस कॉलम को डिलीट कर देते। क्या ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा? हाँ, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ओके। तो अब आता है ऑल्टर टेबल। अब सपोज हम मुझे मॉडिफाई करना है, सपोज एम्प्लॉय नेम जो है वो car20 है, उसको मुझे varchar20 बनाना है। तो कैसा कर सकते हैं? ऑल्टर मॉडिफाई, देन कॉलम नेम क्या है? एम्प्लॉय नेम। अच्छा, ऑल्टर टेबल नेम डालना पड़ेगा, टेबल नेम डालना पड़ेगा, एम्प्लॉय, देन मॉडिफाई यूज करेंगे क्योंकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय नेम, कॉलम नेम डाले, देन जो न्यू डेटा टाइप है वो डालेंगे, varchar 20। रन करते हैं, हो गया, मेरा varchar 20 में चेंज हो गया है। देखो एम्प्लॉय नेम मेरा varchar 20 हो गया है। तो ऐसे होता है, तो ऐसे ऑल्टर कमेंट काम करता है। तो ऑल्टर का बाद आता है ड्रॉप और ट्रांकेट। तो ड्रॉप और ट्रांकेट आता है। तो ड्रॉप क्या करता है? जैसे हम लोग यहाँ पे कॉलम ड्रॉप किए, जैसे कॉलम को डिलीट कर दिया, पूरा परमानेंट डिलीट कर दिया पूरा डेटा के साथ, वैसे ही तुम टेबल को भी पूरा परमानेंट रिकॉर्ड्स के साथ, स्ट्रक्चर के साथ डिलीट कर सकते हो। तो सपोज मुझे एम्प्लॉय इन्फो टेबल ड्रॉप करना है, कैसे करेंगे? ड्रॉप
टेबल, देन टेबल नेम एम्प्लॉय इन्फो, हो गया, मेरा टेबल ड्रॉप कर गया। कैसे पता चलेगा? डिस्क्राइब करो, एरर आएगा, देखो फेल्ड हो गया, डजंट एग्जिस्ट, मतलब मेरा टेबल पूरा डेटा स्ट्रक्चर के मतलब पूरा टेबल स्ट्रक्चर के साथ डेटा के साथ पूरा सब डिलीट हो गया है टेबल। तो बनाने के लिए फिर से ये क्रिएट टेबल कमांड चलाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ड्रॉप। बट सपोज ऐसा हो सकता है कि तुम टेबल का सिर्फ डेटा ही डिलीट करना चाहते हो, तुम और कोई मतलब स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना चाहते हो, टेबल तुम रखना चाहते हो, तो इसके लिए तुम ट्रंकेट कर सकते हो। तो ट्रंकेट कैसे करोगे? सपोज ट्रंकेट टेबल, देन उसके बाद सपोज एम्प्लॉय में अभी कोई डिटेल्स हम नहीं डाले हैं, बट अगर डालोगे तो वो सब डेटा डिलीट हो जाएगा, बस स्ट्रक्चर रह जाएगा। तो देखो डेटा पूरा डिलीट हो गया, ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट हाँ मतलब डेटा जो भी अगर रहता भी तो डिलीट हो जाता ट्रंकेट टेबल करने के बाद, बट स्ट्रक्चर रह जाता। स्ट्रक्चर कैसे रह जाता है? देखो डिस्क्राइब करो टेबल को, मतलब एम्प्लॉय को, टेबल तुमको दिखेगा बट डेटा नहीं दिखेगा, डेटा सब डिलीट हो गया है। तो यही होता है ड्रॉप और ट्रंकेट का डिफरेंस। तो बताओ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। हेलो, नो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, प्रोसीड करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसे पूरा माइक ऑफ करके ही पूछना। तो ट्रंकेट कर दिया टेबल को। अभी क्या करते हैं, अभी इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, टेबल में इंसर्ट करते हैं, एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करते हैं। एम्प्लॉय इन्फो तो डिलीट कर दिए, पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर दिए है, तो डेटा अभी इंसर्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एम्प्लॉय टेबल में कौन सा कॉलम्स है। डिस्क्राइब करके देख लिए, डिस्क्राइब एम्प्लॉय करके देख लिए ये कॉलम्स है, ठीक है। इंसर्ट करते हैं टेबल। तो इंसर्ट अभी कैसे करेंगे? डेटा इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम रहेगा वैल्यूज, तो यहाँ पे तुम सेम लाइन पे ही रख सकते हो, बट हम ऐसे लाइन ब्रेक करके लिखते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर अभी हम लोग वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज तुमको वैसे ही डालना पड़ेगा जो तुम स्पेसिफाई किए हो। अगर तुम स्पेसिफिक रोज में वैल्यू डालना चाहते हो, देन तुम एम्प्लॉय के बाद ऐसे स्मॉल ऐसे राउंड ब्रैकेट्स देके तुम यहाँ पे कॉलम नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद तुम अपना यहाँ पे वैल्यूज में ऐसे ब्रैकेट स्पेसिफाई ऐसे वैल्यू लिख सकते हो। पर अभी हम सब कॉलम्स पे ही डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे नीड नहीं पड़ा कि सारे कॉलम्स को स्पेसिफाई करेंगे। तो एम्प्लॉय आईडी मेरा वारकार है। वारकार क्या होता है? ऑलवेज, वारकार एंड कैरेक्टर, ऑलवेज और डेट भी एक डेट या टाइम स्टैम्प, वो भी एक डेटा टाइप है। तो वो ये तो इंट और नंबर को छोड़ के, और फ्लोट नहीं होता है, यहाँ पे डेसिमल होता है। तो ये तीनों को छोड़ के जो भी डेटा टाइप आएगा, सब डेटा टाइप यहाँ ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में रहेगा, नहीं तो एरर दिखाएगा MySQL तुमको। तो एम्प्लॉय आईडी सपोज लिखते हैं ID1, हो गया। देन दूसरा है नेम मेरा वारकार है, नेम में लिखते हैं सपोज मेरा ही नाम लिखते हैं, सिंपल नाम ही लिखते हैं कोई, हाँ। तो नाम लिखे। तो एम्प्लॉय पोजीशन सपोज लिखे कि डेवलपर, पोजीशन वारकार था इसलिए मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना पड़ा। एम्प्लॉय ईमेल मेरा वारकार है, ठीक है। एम्प्लॉय ईमेल सपोज लिखे p@gmail.com। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट सपोज लिखे कुछ ऐसे कुछ लिख दिए। और दे है एम्प्लॉय एड्रेस कुछ लिखते हैं। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट तुम्हारा है इंटीजर नहीं, प्लस आइकन नहीं है। हाँ। तो
एड्रेस तुमको लिखना पड़ेगा 34, कुछ ऐसे एड्रेस देते हैं 34 मेपल स्ट्रीट लिख देते हैं। हो गया। तो इसमें देख रहे हो कि वैल्यूज ऐड करने के टाइम पे तुमको कॉमा 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 ऐड करना पड़ेगा, बट लास्ट वाला में तुमको ऐड नहीं करना पड़ रहा है। तुमको ये सिंटैक्स मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको एरर दिखाएगा MySQL। तो ये है हुआ। तो हम इसको रन करके देखते हैं हुआ कि नहीं। फेल्ड हो गया। बोल रहे हैं आउट ऑफ रेंज फॉर एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट। मेरा एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट था 11 इंटीजर का, हम कुछ ज़्यादा इंटीजर का डाल दिया शायद। ठीक है, ऐसे डाल के देखते हैं होता है कि नहीं। हाँ, हो गया, सक्सेस हो गया, मेरा डेटा घुस गया मेरा टेबल में। तो अभी हम इसमें चेक कैसे करेंगे कि वैल्यू एंटर किया है कि नहीं। इससे कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार, मतलब सब दिखाएगा, फ्रॉम देन टेबल नेम एम्प्लॉय है मेरा। देखो मेरा टेबल में, देखो मेरा टेबल में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पोजीशन, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय एड्रेस सब आ गया। ऐसे ही सपोज तुमको और एक वैल्यू ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे। ID2 डेवलपर डाल सकते हो, क्योंकि ये वाला कोई नॉट नल पोजीशन नहीं है और कोई यूनिक भी नहीं है, डाल सकते हो। ये सेम कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट था कि ग्रेटर देन 10 करना है, तो इसलिए वो नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट, यहाँ पे int 11 था, इसलिए वो पहले एरर दिखाया। यहाँ पे तो हम कुछ नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे सेम रख ही सकते हैं, और इसमें हम एड्रेस भी सेम ही रखते हैं। एड्रेस में तुम लोग कर सकते हो कि यूनिक कर सकते हो या नॉट नल कर सकते हो, जैसे कंस्टेंट तुम स्पेसिफाई करोगे वैसे तुम वैल्यू डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय किए, सब दिखा देगा। सपोज तुमको एक पर्टिकुलर रो अगर दिखना है तो ऐसा कर सकते हो। सपोज मुझे देखना है कि कितना एम्प्लॉय आईडीज है इसका टेबल में, तो हम करेंगे सिलेक्ट, देन कॉलम नेम लिखेंगे, जो कॉलम मुझे देखना है, एम्प्लॉय आईडी। सपोज और एक कॉलम भी मुझे देखना है, वो भी रख सकते हैं, और एक एम्प्लॉय कॉमा देके, और एक एम्प्लॉय का सपोज नंबर देखना है मुझे, ठीक है। तो देन फ्रॉम, देन टेबल नेम एम्प्लॉय, रन करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय नंबर अननोन फील्ड बोलছে, अननोन फील्ड बोला है, तो एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट था एक्चुअली, मेरा नंबर नहीं था। तो यही एरर आ सकता है अगर कोई और फील्ड में डालते हो तो। तो देखो मेरा एम्प्लॉय आईडी सिर्फ दिखाया, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट सिर्फ दिखाया, पूरा टेबल नहीं दिखाया। पूरा टेबल अगर देखना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो कि पूरा कॉलम का नाम डाल सकते हो, बट अगर सिर्फ स्टार ही डाल दोगे देन मतलब वो सब रोज ही दिखा देगा, उस टेबल में क्या क्या रोज है पूरा डेटा के साथ ही दिखाएगा। और यही डिफरेंस है डिस्क्राइब और सिलेक्ट में। डिस्क्राइब तुमको दिखाएगा कि टेबल का स्पेसिफिकेशंस क्या है, डेटा टाइप दिखाएगा बट डेटा नहीं दिखाएगा वो। और सिलेक्ट क्या करेगा, सिलेक्ट तुमको डेटा टाइप नहीं दिखाएगा, तुमको सिर्फ डेटा टेबल दिखाएगा, टेबल का कॉलम्स दिखाएगा, और टेबल का कॉलम्स के साथ साथ तुमको डेटा भी दिखाएगा। यही होता है सिलेक्ट का काम। तो हम लोग कर लिए कि क्रिएट कर लिए, क्रिएट कमांड किए हैं, क्रिएट, ऑल्टर और ट्रंकेट भी किए हैं, ड्रॉप भी कर लिए, इंसर्ट भी कर लिए हैं, सिलेक्ट भी हम बता दिए हैं। तो अभी हम लोग करेंगे अपडेट और डिलीट। तो उसका पहले बोलो कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मतलब अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो बता सकते हो। सिलेक्ट करने से मतलब क्या हो रहा है, एक बार जस्ट बोल दीजिए। सिलेक्ट होने से क्या होता है कि सपोज मुझे देखना है कि इस टेबल में कितना वैल्यूज है या कितना रिकॉर्ड्स है, तो वो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट से देख सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टार अगर करेंगे देन ये फ्रॉम टेबल नेम, मतलब यहाँ पे तुमको टेबल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टेबल का नाम क्या है, वो उस टेबल से ही वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा। तो सिलेक्ट स्टार अगर करते हैं देन ये सब रिकॉर्ड्स दिखा देता है, सब रिकॉर्ड सब टेबल का कॉलम के साथ दिखा देता है। बट अगर तुम कोई स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिखते हो देन उसमें वो उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर जो जो रिकॉर्ड्स है वही सिर्फ दिखाएगा, पूरा सब रिकॉर्ड्स दिखाएगा, जितना अगर 100 रिकॉर्ड्स है 100 रिकॉर्ड्स भी दिखाएगा। वैसे ही होता है सिलेक्ट का काम, यही होता है। सिलेक्ट का काम तुम कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये हम बाद में बताएंगे। हाँ बोलो।
बोल रहा हूँ कि और रेंज के लिए क्या हम मतलब फ्रॉम यूज करते हैं, मतलब दिस फ्रॉम एम्प्लॉय, नहीं कि जस्ट मतलब कोई स्पेसिफिक कॉलम के लिए या स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए उसका डिटेल्स के लिए जस्ट वो लिख देते हैं हम एम्प्लॉय आईडी दिस वन फ्रॉम एम्प्लॉय, वो जस्ट वो हाँ वो दिखाएगा। भी कर सकते हैं, वो हम बताते हैं वेयर यूज़ करेंगे, उसके लिए वेयर यूज़ करेंगे, देन बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। वो हम ये अपडेट डिलीट के बाद हम वो बताएंगे। बट इसका पहले अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, मतलब अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बता सकते हो, वो हम दोबारा रिपीट कर देंगे। अच्छा ठीक है, प्रोसीड करते हैं। तो ये मेरा हो गया। तो ये तुम्हारा टेबल, तो ये तुम्हारा टेबल शो करता है, ठीक है। तो माइस्क्यूएल में कमेंट्स ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके कमेंट्स लिखते हैं कि सपोज शो टेबल्स इन डेटाबेस, जो शो टेबल्स का होता है, तो ये लिख रहे हैं शो टेबल्स इन डेटाबेस, ऐसा कमेंट हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे कमेंट लिखा जाता है, डबल हाइफन करके कमेंट लिखा जाता है। सपोज यहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं एक कमेंट कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, तो ऐसा करके हम लोग कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स कुछ ज़्यादा हम नहीं देखे यूज़ होता है, बट हाँ मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम कमेंट्स लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आता है अपडेट, सिलेक्ट हम लोग कर लिए, और आता है इंसर्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अपडेट और डिलीट आता है। तो अपडेट क्या होता है कि सपोज ये एम्प्लॉय आईडी, सपोज मेरा ऐसा रिकॉर्ड है, ठीक है, मेरा ऐसे हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं। अब हम चाहते हैं कि आईडी 1 में जो एम्प्लॉय का नाम है वो रिनी नहीं होगा, वो और कोई नाम होगा। तो वो हम लोग बिना इस कॉलम, बिना इस रिकॉर्ड को डिलीट किए हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपडेट, देन टेबल का नाम, टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय, देन तुम नया वैल्यू सेट कर रहे हो तो सेट यूज करना पड़ेगा, सेट कीवर्ड, सेट, देन कॉलम नेम, कॉलम नेम है मेरा एम्प्लॉय नेम, क्योंकि एम्प्लॉय नेम हम मॉडिफाई करने वाले हैं। इज इक्वल टू देके नया वैल्यू, तो नया वैल्यू कुछ डालते हैं, सपोज कोई भी डाल सकते हैं, ऐसे गीता डाल दिए। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे मतलब हम लोग जानेंगे कि ये एम्प्लॉय आईडी होगा। जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये एम्प्लॉय नेम ही स्पेसिफाई होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 एम्प्लॉय नेम है मेरा रिकॉर्ड्स में। तो यहाँ पे कैसे हम लोग बोलेंगे कि आईडी 1 का ही सिर्फ एम्प्लॉय नेम चेंज होगा? इसके लिए वेयर कंडीशन आता है। ये वेयर कंडीशन तुम सिलेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, तुम और मतलब सिलेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, अपडेट के साथ भी यूज़ कर सकते हो, या डिलीट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। वेयर क्या करता है? एक कंडीशन, मतलब अगर ये जो पर्टिकुलर है इसमें तुमको करना है, ये जो पर्टिकुलर है इसको वेयर स्पेसिफाई करता है। तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू आईडी 1। तो देखो ये अपडेट कर लिया। अब अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए, तो देखो ये पहले था रिनी, अभी हो गया गीता, क्योंकि हम मॉडिफाई किए हैं। इसलिए मुझे पूरा रिकॉर्ड भी चेंज नहीं कर, मतलब पूरा रिकॉर्ड भी डिलीट करके फिर से इंसर्ट नहीं करना पड़ा मुझे। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ये अपडेट कमांड है।
तो ये हो गया अपडेट कमांड। तो इसका बाद आता है डिलीट कमांड। तो डिलीट क्या करता है, सपोज तुमको यहाँ पे एक रो में डिलीट करना है जिसका एम्प्लॉय आईडी है ID2, तुमको वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड तुमको डिलीट करना है। कैसे कर सकते हो, डिलीट फ्रॉम देन टेबल नेम, तारपर देन वेयर एम्प्लॉय आईडी, वही सेम कि कैसे पता चलेगा कि वही एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करना है, देन जो रिकॉर्ड हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट हो गया मेरा रिकॉर्ड। कैसे पता चलेगा, करो सिलेक्ट स्टार। देखो मेरा आईडी सिर्फ एक ही दिखा रहा है, पहले ID2 दिखा रहा था, अभी नहीं दिखा रहा है। तो यही ऐसे ही होता है, डिलीट कमांड ऐसे ही लिखा जाता है और ऐसे एग्जीक्यूशन होता है उसका। तो ये हुआ डिलीट कमांड। तो अपडेट और डिलीट हम लोग बोल दिए। अब अगर तुम देन सारा अगर रोज देखना चाहते हो, सी ऑल रोज ऑफ अ टेबल, रोज नहीं बोलेंगे, टेबल रिकॉर्ड्स, देन तुम सिलेक्ट स्टार कर सकते हो। अगर तुमको एक स्पेसिफिक टेबल का कोई पर्टिकुलर कॉलम का रिकॉर्ड्स देखना है, देन तुमको वो कॉलम नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग किए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, यहाँ पे स्पेसिफिक रोज देखे हैं, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पे सिलेक्ट में भी अगर सपोज मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ऐसे वही पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सिर्फ रिकॉर्ड देखना है मुझे सिलेक्ट में, वो भी हम लोग कर सकते हैं। और वो होता है ऐसे वेयर कंडीशन से। तो वेयर कंडीशन इन सिलेक्ट, सपोज मुझे बोला गया है कि वही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका एम्प्लॉय आईडी ID1 है, वो भी कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मेरा जो टेबल है, अब ये तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मेरा पूरा टेबल दिखाएगा मुझे, पर मुझे तो पूरा टेबल देखना नहीं है, मुझे तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी जिसका एम्प्लॉय ID1 है वही देखना है। तो हम क्या करेंगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू ID1, रन करो, एकदम देखो सिर्फ ID1 का ही दिखाएगा। अब तुम बोल सकते हो कि ऐसे एक ही है तो इसलिए भी दिखा सकता है, नहीं। अगर हम ये इंसर्ट करके फिर से रन करते हैं, देखो सिलेक्ट स्टार किए, 2 रिकॉर्ड्स दिखाया। अब देखो हम अगर ID1 करके देखते हैं, देन मुझे एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा, बट यहाँ पे असली में 2 रिकॉर्ड्स है, पर हम सिर्फ ID1 का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो इसलिए ID1 का रिकॉर्ड सिर्फ दिखाएगा इस कमांड से। तो इसलिए तो ऐसे वेयर स्टेटमेंट काम करता है। तो वेयर स्टेटमेंट बहुत तरह के और भी तरीके से काम कर सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम देखना चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय का नाम जिसका नाम स्टार्ट होता है G से। अब मुझे पता नहीं है कि कौन सा नाम G से स्टार्ट होता है, बट मुझे देखना है कि ऐसा एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जिसका एम्प्लॉय नेम स्टार्ट होता है G से, वो भी हम लोग कर सकते हैं वेयर। अब ये हम लोग करेंगे लाइक से। लाइक क्या करता है, पैटर्न मैच करता है। तो हम लोग लिखेंगे वेयर, देन कॉलम का नाम, जो कॉलम का नाम का हम लोग को चाहिए, एम्प्लॉय नेम, लाइक, देन हम लोग पैटर्न स्पेसिफाई करेंगे। तो पैटर्न कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को शुरू में नाम चाहिए ना, शुरू में G चाहिए, तो हम लोग G% लिखेंगे। तो G% क्या होता है, G% तुमको स्पेसिफाई करता है वो पैटर्न जहाँ पे तुम्हारा कोई वर्ड या स्ट्रिंग G से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे %G लिखते, देन इसका मतलब है कि वो G से वो वर्ड खत्म होता है। और अगर हम लोग ऐसे लिखते %G ऐसे लिखते हैं, देन इसका मतलब है कि
ये जी इसका अंदर है, मतलब कहीं भी पोजीशन पे भी रह सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को फिलहाल बिगिनिंग विथ जी चाहिए, तो रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो ये सिर्फ वही रिकॉर्ड रिटर्न किया जिसका एम्प्लॉय नाम जी से स्टार्ट करता है, गीता का रिकॉर्ड रिटर्न किया। ये है लाइक। और भी होता है, ये रेंज करने के लिए हम लोग बिटवीन, वो बिटवीन कमांड एंड बिटवीन यूज करते हैं। जैसे सपोज कोई ऐसे नंबर है, ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, तो एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट मुझे जानना है, तो हम लोग कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट बिटवीन सपोज 6000 एंड 7000, देन 6983 6000 और 7000 के बीच में है, तो सिर्फ इसका ही रिकॉर्ड दिखाएगा वो। तो ऐसे ऐसे वेयर कंडीशंस बहुत सारा यूज होता है। तो हम लोग किए हैं, क्रिएट किए हैं, डिलीट ऑल्टर किए हैं, ड्रॉप किए हैं, ट्रंकेट किए हैं, इंसर्ट किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, अपडेट किए, डिलीट किए और सिलेक्ट स्टेटमेंट भी हम दिखा दिए। अब सपोज ये जो तुम ट्रंकेट कर रहे हो, ये ट्रंकेट तुम डिलीट से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? डिलीट फ्रॉम देन टेबल नेम। ये क्या करेगा? ट्रंकेट के जैसे ही काम करेगा, टेबल का सब रिकॉर्ड्स हटा देगा, बट टेबल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा तुम्हारा। सब रिकॉर्ड हटा दिया, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय करके देखो, कुछ नहीं आएगा, नो रिजल्ट्स आएगा, क्योंकि तुम्हारा सब डेटा तो डिलीट हो गया है, डिलीट कर दिया है ये। तो यही है, तो यही है। तो अभी बोलो, तुम लोगों को कुछ दिक्कत है तो दिक्कत है या कुछ पूछना है तो बोल सकते हो। एक बार डिलीट होने के बाद क्या हम मतलब अगर डिलीट कमांड हटा दे तो वो फिर से आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं आता है। अब तुम इसका हो सकता है कि तुम इसका ट्रांजैक्शन कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल नहीं बोलेंगे, मतलब इसका तुम कर सकते हो। जैसे गिट में हम लोगों का होता है कि हम लोग उसको पुराने कमिट को कॉल बैक कर सकते हैं, कुछ कुछ एसक्यूएल कमांड्स के लिए ये कर सकते हैं। बट जो लाइक डीडीएल कमांड्स होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाला कमांड, जैसे हो गया तुम्हारा क्रिएट, देन ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये मतलब पूरा डिलीट कर देता है टेबल, ये मतलब पूरा मतलब ऑटो कमिट कर देता है, मतलब तुम उसको फिर से रिट्राइव नहीं कर पाओगे। तो ये तो बहुत खतरनाक है, अगर गलती से कोई डेटा डिलीट हो जाए। हाँ, मतलब अगर मैं जस्ट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ये वाला कमेंट हटा के फिर से रन करूँ पूरा प्रोग्राम फर्स्ट से उस तक, वो नहीं आएगा? नो रिजल्ट्स? नहीं, अगर देखो तुम डिलीट वाला कमांड हटा के अगर तुम ये क्रिएट टेबल फिर से करने जाओ ना, देन तुमको एरर दिखाएगा, क्योंकि एक डेटाबेस में दो टेबल तुम्हारा रह नहीं सकता है, मतलब दो टेबल सेम नाम का रह नहीं सकता है, डिफरेंट नाम्स का रह सकता है। तो तुम अगर ये डिलीट फ्रॉम किए करके, अगर डिलीट फ्रॉम टेबल करके तुम अगर फिर से क्रिएट टेबल करोगे, देन तुमको एरर आएगा, क्योंकि तुम डिलीट फ्रॉम जब कर रहे हो तब तुम्हारा सिर्फ डेटा ही रहेगा, तुम्हारा डेटा ही सिर्फ डिलीट होगा, बट तुम्हारा टेबल का स्ट्रक्चर तो रहेगा ना। तो और एक टेबल और दो टेबल सेम नेम से नहीं रह सकता है, तो इससे वो एरर आएगा। ओके, ठीक है। एंड डिलीट करना मतलब ये कोई वैसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, क्योंकि जब तुम होस्ट कर देते हो इस चीज को, इस डेटाबेस को कहीं पे, तो वो कंटिन्यूसली तुम सेट कर सकते हो कि हर एक वीक या हर 2 दिन पे उसका बैकअप तैयार होते रहे, तो इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं होगा अगर डेटा डिलीट भी होता है तो। ठीक है भैया। तो और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। तो हम लोग सब कुछ कवर ही कर लिए हैं, हम लोग और कुछ हम लोग का बाकी नहीं है, हम लोग पूरा सब कुछ कवर ही कर लिए हैं। तो ये मतलब हम लोग देखो और भी एसक्यूएल कमांड्स है, ठीक है, बट ये काइंड ऑफ दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एसक्यूएल, जो हम लोग अभी कवर किए हैं, दे काइंड ऑफ फॉर्म द बेसिस ऑफ एसक्यूएल। और ये कमांड्स पे ही मतलब फर्दर मॉडिफिकेशंस आएंगे, सब क्वेरीज हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो तुम फ्रॉम लिख रहे हो, फ्रॉम ऑलवेज टेबल ना ही रहे, फ्रॉम ऐसा हो सकता है कि फ्रॉम का अंदर भी एक एसक्यूएल कमांड रहे,
ऐसा भी रह सकता है, वो और हायर मॉडिफिकेशंस है। बट हम लोग अभी बेसिक से करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम लोग सोचे कि एक मतलब बेसिक से टारगेट किए हैं। तुम लोग बाकी मतलब ऐसे एसक्यूएल कमांड्स ऐसे पढ़ सकते हो कि हायर मॉडिफिकेशंस क्या होता है, बट हाँ ये सब बहुत बेसिक्स, ये सब बेसिक्स है। दीज आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ माई एसक्यूएल, और ये तुमको अच्छे से जानना पड़ेगा। फाउंडेशन स्टोन्स तुमको अच्छे से जानना पड़ेगा तुमको और हायर एडवांस लेवल में पढ़ने के लिए। तो और बताओ, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? तो हम शेयरिंग स्टॉप किए हैं, तो तुम लोग बता सकते